4 days after a cloudburst triggered flash floods and landslides in Arunachal Pradesh, K.A. Pannur district, authorities on Sunday recovered the body of a third victim, continued restoration work amid persistent rainfall and initiated a comprehensive assessment of damage to homes and other properties. The district administration of K.A. Pannur has constituted a verification committee to assess the damage caused by the recent flash floods. The committee has been directed to undertake field verification on June 29 and submit a detailed verification report along with its recommendation to the Deputy Commissioner immediately. While the East Kaming District Administration in Arunachal Pradesh has issued a weather advisory warning of thunderstorms accompanied by lightning and heavy rainfall across the district from June 28 to July 21, following a forecast by the India Meteorological Department. The advisory has been issued by the Office of Deputy Commissioner, urging residents to remain alert and strictly adhere to safety guidelines in view of the anticipated adverse weather conditions. Authorities have cautioned that the prevailing weather pattern may trigger landslides, flash floods and disruption in normal life in vulnerable areas of the district. Now let's hear survivors of the devastating flash floods recalling the terrifying moments when raging waters swallowed their homes, livelihoods and lifelong possessions, forcing families to seek refuge in temporary relief camps after narrowly escaping with their lives. Myself, Munin Chaudhary, presently HOP of this Pannur Lower Hydro Project. Earlier it was called that Ranganadi Hydro Project. So what has actually happened on the June 24th morning? Yeah. Lots of the destructive scenario has been... Yeah, it's actually triggered from the, after early morning 3 a.m. there is a heavy rainfall. Entire this area along with this Papumpare district. Our power plant is from here it is 30 kilometer away. From here it is tunnel is 10.14 kilometer, but through road you will be reaching our powerhouse around 30 kilometer. So from early morning 3:15 a.m. that rain has started, and that actually triggered at 6:30. The debris and all heavy flood is coming. This one is called Painala actually, and this is not related with our that main reservoir. It's coming to a meeting with this reservoir, and our all quarter is nearby this Painala. So during 6:30 a.m. morning, that heavy shower is because of this heavy shower, heavy fresh flood is coming and hit our quarters. That we have two types of here in between that road. You have seen already that nearby the river. Earlier it is, you cannot call a river, it is a nala actually. Now it looks like a become river. You have seen already. So, and then our around 54 houses is affected, and out of 54, 24 is washed away. And that remaining 30 is either partially damaged and majorly damaged. And out of the 24, that initially our 18 people is injured. 18 people is injured. Then we took them here to our dispensaries, our NIPCO dispensaries, and after giving this initial treatment, we are leave them.
Then again we have recovered 5 severely, and then after taking the preliminary treatment we have forwarded to 0. Actually all roads are cut off from every side. Till today also our Potin and Hos road is not open. That through Kimin, that Lakhimpur road is partially open, but it is closed. So day before yesterday only that road was cleared. And out of the 5 seriously injured patient, we have forwarded for betterment to the 0, and that remaining 5 missing person. So that day only, on 24th, we have recovered one lady. She is a wife of our accountant of BKB school. And, that day we have recovered, and today just now we have recovered one lady, and that earlier that first dead body we have airlift. जून 24 को जो मॉर्निंग में जो फ्लैश फ्लड आया था, तो उसमें जो नेपको का इलाका है उसमें 5 मिसिंग पाए गए थे, और एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। एनडीआरएफ को भी रिक्वेशन किया गया था, क्योंकि रोड ब्लॉकेज की वजह से एनडीआरएफ शुरुआती के 2 दिनों में नहीं पहुंच पाई। कल एनडीआरएफ की टीम यहां आई है और सर्च ऑपरेशन कर रही है। हमारे साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स, कैनाइन और बोट के द्वारा जो भी हाइड आउट्स है उसमें हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जी, हमने कैनाइंस का भी इस्तेमाल किया है कि अगर पॉसिबिलिटी हो कहीं पर लाइव विक्टिम्स के चांसेस हो, उन सारे पैकेट्स में हमने उनका इस्तेमाल किया है। और हमारी कुछ टीमें और भी स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ आज ज्वाइन करने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग हम सर्च ऑपरेशन को और इंटेंसिफाई करेंगे। ज़्यादा डेब्रिज होने के कारण ये सर्च ऑपरेशन में कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं। जी, डेब्रिज होने की वजह से हमारे जो अपने बोट में देख रहा हूँ फ्लोटिंग डेब्रिज, जिसमें से कुछ हमारा हजार्डस मटेरियल भी है, शार्प ऑब्जेक्ट भी है, तो उनको सर्च ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन कठिनाइयों की वजह से ये पार्सल ऑफ सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस में ऐसी कठिनाइयाँ आती है, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो 3 मिसिंग बॉडी है वो मिल जाएंगे। तो अभी तक 2 बॉडीज मिले हैं, तो आप क्या आशा रखते हैं कि क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हिली एरिया है और वेदर भी चेंजेस हो रहे हैं। वेदर, हिली एरिया, और जो आपने देखा होगा आसपास इतने ज़्यादा फ्लैश फ्लड का मलबा है, तो उसके वजह से चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है, और जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज है, उसके अनुसार हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली बाय इवनिंग और मिल जाने के चांसेज है। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम सरानाम तौतरा है। हम ये डिस्ट्रिक्ट का, कीपन डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी कार्यकर्ता है। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था? उस दिन एक्चुअली यहाँ पे करीब 7:30-8 बजे से में ये पानी निकल के ना, जो हम लोग का एक बाबी था वो आगे पे, तो उसको मतलब ले गया, मतलब और बहुत आदमी ले गया, काफ़ी आदमी यहाँ से मिसिंग हुआ है, और बाकी को रेस्क्यू किया गया है। बाकी लोग सब, आधा लोग सब ठीक ही है, जो भी बोलने से ना। तो अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। मिसिंग लोग हैं, उन लोगों का फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आज लगभग आज 3 दिन हो गया। 3 दिन में हम लोग जितना भी मतलब जो पोकलाइन लेके खुदाई किया ना, तो ज़्यादा सामान तो नहीं मिला है। आज ये जो आदमी हम लोग का एक बाबी था, ताओ आजनी बोल के, उसका ताओ आजनी, उसका बैग मिला है, ये उसका फ़ोन भी मिला है, ये देखिए फ़ोन और बैग मिला है। तो शायद उम्मीद है मतलब उसमें वो जगह पे जो उधर खुदाई कर रहा है ना, मिलने का चांस भी है ना, तो इसलिए हम लोग उम्मीद का साथ काम कर रहे हैं। तो लगभग कितने आदमी अभी भी मिसिंग हैं? लगभग अभी 4 आदमी मिसिंग हैं। एक का तो बॉडी मिल गया। एक का बॉडी मिल गया। बाकी भारी नुकसान हुआ है यहाँ पर। हाँ, बहुत नुकसान तो हो गया। मचा दिया है। हाँ जी। तो अभी भी बारिश हो रहे हैं। हाँ। तो लोगों के मन में और भी डर है इस बात को लेकर। वो तो बहुत ही मतलब घटना तो बहुत ही पानी तो भयानक यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसके लिए आदमी तो अभी भी अंदर में दिल दिमाग में मतलब सदमा होके बैठेगा, डर बैठेगा, पैदा करके बैठेगा। तो उसके लिए मतलब उस माहौल को मतलब आदमी लोग तो फर्स्ट टाइम देखा है ना ये भयानक हादसा को,
तो पहले तो ऐसा तो नहीं था, मतलब कि देखा भी नहीं इतना भयानक, ऐसा तो यहाँ पर तो हुआ ही पहले मतलब मेरा फोर फादर्स पिताजी का पिताजी बोला था, मतलब 50 साल आगे एक बार गया था, मतलब इसी तरह। तो उसी तरह ये भी उस समय का 50 साल पीछे आ गया होगा शायद, 50 साल बाद हाँ आ गया होगा, अच्छा हुआ है। हाँ ऐसा हादसा हो गया। ये जगह का नाम पोसा है और ये की पंजाब डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था? ये एक्चुअली ये इंसिडेंट जो है 24 का दिन में हुआ था सुबह में। हम लोग बहुत लकी है कि ये चीज जो रात में नहीं हुआ है। अगर रात में होने से शायद हम लोग का ये बस्ती से भी बहुत लोग जो अभी तो जितना हम लोग का यहाँ में प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, जितना जानवर था, हर एक चीज व्हीकल बहुत सारा डैमेज हुआ है। लेकिन उस रात में अगर वो घटना होने से शायद आज हम लोग का अपना परिवार, अपना रिश्तेदार को भी, बहुत लोग को भी खोना था। तो आपके घर के पास में ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ? जी, एक्चुअली मेरा घर जो है ये नदी से थोड़ा मैंने बहुत डिस्टेंस है। एक्चुअली इसमें इतना हम लोग इफेक्ट होगा सोचा नहीं था, क्योंकि ये नदी भी इतना कभी बहा नहीं है ना, तो बहुत छोटा नदी था। तो ये घर तो आप लोग बाद में खुद देख लो, यहाँ में पूरा गिर के बैठा है। नदी गिरा है, घर गिरा साथ में पूरा मिट्टी को भी ले गया। अभी ऐसा हो रहा है कि ये मिट्टी में दोबारा घर भी नहीं बना पाएगा हम लोग ऐसे। आप लोगों की प्रॉपर्टीज, मतलब आप लोगों के सामान वगैरह ये सब कुछ? जी, प्रॉपर्टी तो जितना, ये मेरा माँ है, आप लोग इसको भी एक बार दिखा दीजिए। ये मेरा माँ है, इसका नाम है लिखा योयू। ये एक विडो है, मेरा पापा नहीं है। पापा तो बहुत साल पहले गुजर गया था। तो माँ का जितना जमा पूंजी अभी तक का, ये घर के लिए सब इतना मेहनत करके मैंने घर एक बनाने के लिए, क्योंकि यह ऑलरेडी एक घर है हमारा पुराना वाला ना, यहाँ में आप लोग देख लो। वो पुराना वाला घर में ऐसा था कि हर मानसून में हाईवे जो इस साइड डाइवर्ट होने का वजह से अप हो गया हाईवे, तो घर जो हम लोग का डाउन हो गया। इसका वजह से जब भी बारिश आने से फ्लड जो अंदर में थोड़ा पानी आ जाता था, तो वही चीज के लिए हम लोग भी सोचे कि नहीं, ऐसा से तो घर में बैठने के लिए मैंने नहीं सकेगा, तो हम लोग जल्दी से घर जैसा से बना लेगा। ये घर को हम लोग जो 2016 से 26 से हम लोग स्टार्ट कर चुका है ना, 24 ना 25 का हम लोग दिसंबर से हम लोग स्टार्ट किया था करके। एक्चुअली फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग धीरे धीरे घर को अभी तक बना रहा था। तो ये नेक्स्ट वीक ही हम लोग जो यहाँ में शिफ्ट होने का बात चल रहा था। विद इन नो टाइम में 3 घंटा का बारिश इतना हिट से आया है कि घर को पूरा अभी हर चीज डैमेज हो गया, हम लोग का सपना डैमेज हो गया। आप लोग खुद एक सोच के देखो, एक विधवा औरत को, और जिसका कुछ सर्विस नहीं है, कुछ अलग जॉब नहीं है, जो अपना डेली वेजेस से जी रहा है, इतना मेहनत करके एक जो अपना आशियाना बनाया, तो वो एक झटका में टूट गया ना, तो बहुत दुख है उसका। और वो नहीं कि ये वाला अभी जो प्रेजेंट घर बैठ रहा है, जो उसको ये भी ऑलमोस्ट डैमेज ही है। अंदर पूरा फ्लड आके बल्बा अभी तक मैंने हम लोग अंदर भी नहीं घुस पा रहा है, और हम लोग एक अपना चीज भी नहीं निकल पाए है, पूरा अंदर में ही दब के बैठा है ना। तो ऐसे भी बोल के नहीं, और बहुत सारा हम लोग का जितना स्कूटी भी बाहर में रखा था भाई का, वो भी चला गया। दुख तो इतना है, दुख तो बहुत है। अभी आप लोग को कैसे हम फेस करेंगे? आप लोग ऑलरेडी नजारा को देख रहे हैं ना, इतना दुख है हम लोग। जो फैमिली में अभी तो ये जो मेरा जो घर है, जो माँ का घर में, तो मेरा माँ, भाई और मेरा बुआरी बैठता है। एक्चुअली हम इसका वो है बेटी है, तो मेरा घर थोड़ा पास में है, तो अभी ये लोग मेरा साथ में रह रहा है। मतलब आप लोगों का मान लीजिए कि 2 घर डैमेज हो, 2 घर टोटल डैमेज, 2 घर डैमेज। उसके बाद में एक स्कूटी और प्रॉपर्टी भी पूरा आप मिट्टी चला गया। एक साइड का नहीं, दोनों साइड का चला गया। एक साइड भी मिट्टी पूरा डैमेज हो गया हम लोग का। और उतना नहीं, हर एक डॉक्यूमेंट्स भी पूरा खत्म। अभी डॉक्यूमेंट्स का भी हम लोग निकाल के भी यूज ही मैंने पूरा खत्म, पानी से पूरा भीसे खत्म। एक इतना छोटा सा मैंने चीज को भी हम लोग निकालने के समय नहीं मिला है। बारिश इतना हिट से आया है, कब कहाँ कैसे हो गया कुछ भी हम लोग को नॉलेज ही नहीं है। मैंने माइंड भी हम लोग का डायरेक्ट ब्लैंक हो गया। अभी क्या करें, इतना तक भी सोचने के लिए भी हम लोग को समय नहीं मिलेगा। बारिश एक झटका में आया, पूरा तबाह करके चला गया। तो यहाँ पर लगभग कितने लोगों का घर टूट गया? कोई घर तो मैक्सिमम घर हम लोग का यहाँ में अभी बोलने से, वो जहाँ हम लोग का ये नदी को जो हम लोग का पाई नदी बोलता है, तो स्टार्टिंग से लेके ऑलमोस्ट पूरा डैमेज है। स्टार्टिंग जहाँ से हम लोग का ये नदी जो बह के आता है, उसका जो उसका जिस नीचे में हम लोग का जहाँ से स्टार्टिंग ये घर बस्ती शुरू होता है, वहाँ से लेके जितना भी हम लोग का जो थोड़ा नदी का आसपास वाला सब कुछ डैमेज हो गया। इवन हम लोग का हमें एक प्राइमरी स्कूल था हम लोग का बस्ती का, वो भी डैमेज है, ऑलमोस्ट पूरा डैमेज है। अभी डैमेज यहाँ तक का बस्ती का बोल के, तो मेरा माँ का घर जो यहाँ से होके फिर नेपको में ज्यादा इफेक्ट पड़ गया यहाँ से। आप लोगों ने घर के
हाँ वो बहुत लिया है हम लोग। माँ जो एक्चुअली हम लोग का माँ का पिताजी तो सर्विसमैन था, तो उसका पेंशन थोड़ा आता था, तो वही मैंने पेंशन लेने से पेंशन के अगेंस्ट में हम लोग को होम लोन तो नहीं दे पाएगा वो लोग, बहुत पेंशन तो कम आता है, तो इसलिए वो पर्सनल लोन उठाया था हम लोग SBI बैंक से, तो वो भी लिया है। और हम लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम लोग एक ऑर्गेनाइज है हम लोग का, एक फेडरेशन है